frame your speech according to topic you have opted from the cheat. Okay, prepared. Good afternoon everyone. My name is Sahib Tarunda. I am from the Department of Economics. My today's topic is child development and how it can affect the development of a country. First of all, we have a very strong chain that Parega India tabhi to Parega India. It means the India today, the studies will be the future of the India. This includes every section of society, but predominantly it includes the section of children. As we know, children are the bedrock or the pillar of an economy or a country or a future or whatever we say. So, children's education, the children's justice, the children's safety is the bedrock of everything that we are today. We ourselves as a children receive the justice, receive the education, that's why we are today here. So the thing in Develop India, the Viksit Bharat of 2047 that Sri Narendra Modi ji has said is based on the study that all the education of our children. The children that exist currently are means in much number of marginalized from the marginalized society that exists in India, where people throw their children into child labor, probably some kind of human trafficking or something else, and that completely destroys the future of a country. As we know, the children nutrition also comes into this, the children education too comes into this, children justice comes into this, also child safety comes into this. Let's talk about child nutrition. Child nutrition starts from the mother, from maternity itself. The child nutrition starts. The day a country's child nutrition becomes strong is the day a country's children will be safe for the future. There are various diseases like polio and many other like bone diseases that affects the child's the infantry of a child very much. So first of all, we have to improve the child nutrition of a country where children are given free vaccines, free polio drops, and many other like sickle cell anemia, this, that, and prevent children from. Next, we have to prevent children from that. The thing of that we call that molestation. The child safety is a very strong thing in our country. The child molestation is going towards a very rough and tough place. As we speak today, there are many things going on around. As we can see over the internet, how children are abused, this, that. Then after that comes children education. I have told about how education is the strong bedrock. There are many schemes in India like midday meal schemes and many other that actually looks after how children from the marginalized society of a sector are coming into the education sector. And I want to say that the strong words that I started my speech with, the Parega India, tabhi to Parega India, that has to be the strong basis of the Viksit Bharat of 2047 that we want to achieve. And with that, I want to end my speech. Thank you. रोहन भारती आप अपना रोहन भारती चिट ले लो बेटा. Good afternoon to everyone present here. So मैं हिंदी में बोलूँगा और इंग्लिश में मिक्स करके बोलूँगा. तो जैसा कि हमारा थीम है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. सो मेरा टॉपिक भी है कि चाइल्ड डेवलपमेंट. तो ज़्यादातर तो मेरे दोस्त ने, मेरे सहपाठी ने बता दिया. मैं भी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से ही हूँ. तो जैसे कि अलग अलग पैरामीटर्स पे चाइल्ड को डेवलपमेंट को देखा जा सकता है. जैसे कि इकोनॉमिक मतलब एजुकेशन पे तो बहुत सारे बच्चे जो मतलब लोअर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आते हैं, उन लोगों को एजुकेशन का मौका नहीं मिलता. और जो मतलब सरकारी विद्यालय भी होते हैं मतलब गाँव में, वहाँ पे जो सरकार चीज़ें ले आती है वो भी ठीक से उन्हें मुहैया नहीं होता है. जैसे कि स्कूल ड्रेस भी नहीं मिलती है और जो टेक्स्ट बुक्स आती हैं वो भी नहीं मिलता है. तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि हर मतलब बच्चे को ये सब मुहैया हो. और ये भी देखना चाहिए कि आजकल जैसे सोशल मीडिया पे बच्चे बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं. वो उनके पेरेंट्स भी दे देते हैं मोबाइल की आप यूज़ कीजिए और ये सब. तो हमें उस पर भी देखना पड़ेगा ताकि उनका क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े.
जब वो मोबाइल चला के थक जाएंगे तो फिर वो उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, और फिर और हेल्थ केयर भी इम्पोर्टेंट है उनका। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं हैं, उनका वो मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिलता। जैसे कि हमारे मित्र ने बताया कि जब वो मतलब गर्भ में बच्चे आते हैं तो उनकी माताओं को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो फिर अपने आप उनको भी वो होता है। तो हमें ये सब देखना पड़ेगा। जैसे मिड डे मील स्कीम है, तो उसमें बच्चों को मिड डे मील स्कीम देखना पड़ेगा कि अच्छे से इम्प्लीमेंट होती है कि नहीं, उसमें न्यूट्रिशियस फूड दिखाना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए उनको। कुछ जगह पे ऐसे भी मतलब न्यूज़ में आती है कि उन्हें मतलब रोटी नमक दिया जाता है, रोटी नमक। तो अब अच्छा ठीक है, रोटी नमक दिया जाता है, तो उसमें अगर कोई रिपोर्टर मतलब उसे रिपोर्ट भी करता है तो मतलब सरकार बजाय एक्शन लेने के उस पर रिपोर्टर के खिलाफ वो देती है। तो उसे भी देखना चाहिए और सोशल मीडिया पे मतलब वो मिनिमाइज करना चाहिए। और एजुकेशन हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चे भविष्य हैं, ये नींव है। अगर किसी देश की मतलब नींव ही कमजोर रहेगी तो फिर हम महल बनाने का सपना तो देख ही नहीं सकते। आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं। तो आज हम जो कुछ भी हैं वो पिछले हमारे पेरेंट्स ने जैसे एजुकेशन पाई है उसी हिसाब से हम लोग आज हैं। तो शालू सिंह आपके नमस्कार, मेरा विषय है नारी सशक्तिकरण। बेटियों की जब देख ले दुनिया, हम उसी के सामने बेटे की दुआ मांगते हैं। हम सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़कर आए हैं, स्नातक या प्रस्नातक कर रहे हैं, और हमें PhD या किसी और क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। इसमें कोई इसमें है कि हम वंचित के शिकार हुए, हमें वो नहीं मिला जो आपको मिला। इसकी ऐसी लड़कियों के साथ, और आज से ही नहीं, बहुत पहले समय से ही जो वंचना का शिकार स्थितियाँ हैं वो हम सभी जानते हैं। जब हम सवाल खड़े करेंगे तो उसके दायरे से कोई बाहर नहीं जाए। सबसे पहला सवाल, जी क्या रावण ने ले गया, फिर वध किया, सीता जी लाया। जब आया तो किसी लाछन लगा कि हम कि तुम पवित्र का परीक्षा देना। तो सवाल ये है कि भैया आप भी तो जंगल में अकेले थे, क्या पता आपका भी मन रह गया हो, तो परीक्षा सीता की राम की। मैं हमेशा से कहता हूँ कि पुरुषों को ये बर्दाश्त नहीं होता था कि कैसे ये जो इतने लंबे अरसे का हमारा पुरुषत्व है, हमारा प्रभुत्व है, हमारे बराबर कैसे कोई स्त्री आके बराबर है। और ये हमारी चेतना में बस गया, पुरुषों की चेतना में बस गया। हम सवाल उनसे भी करेंगे कि घर छोड़कर चले गए गौतम बुद्ध, यशोधरा से पूछा करते, और ठीक है संसार का ज्ञान लेना था, तो क्या उस संसार के ज्ञान लेने में परिवार का ज्ञान नहीं आता क्या? तकलीफ इस बात की नहीं है कि संसार का ज्ञान लेना था, तकलीफ इस बात की कि एक दफा पूछ लेना था। वो पत्नी थी, उनकी कोई गुलाम नहीं थी। और ये वंचना तब से लेकर आज आप कोई भी महान व्यक्ति ले लो, कबीर को ले लो, उन्होंने कहा कि नारी की झाई परत अंधा हो मुझे कमाल। आप इतने महान व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसी बातें कैसे कह सकते? तो ये जो इतनी लंबी वंचना है, इसको हमें जड़ से समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। वो कहते भी हैं कि अगर हम किसी पुरुष को शिक्षित कर रहे हैं तो हम एक व्यक्ति को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन यदि हम किसी लड़की को शिक्षित कर रहे हैं, किसी महिला को शिक्षित कर रहे हैं, तो हम एक परिवार को शिक्षित कर रहे हैं। और लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। आज के व्यवहारिक जीवन की बात बता देता हूँ। हमारे पास, मेरे पास, मैं लड़का हूँ तो मेरे पास मौका है 365 दिन इस यूनिवर्सिटी में आने का, लेकिन ये मौका लड़कियों के पास नहीं होता, उनके अपने बायोलॉजिकल कारण। तो लेवल प्लेइंग तो फील्ड है ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली पीछे होगा।
इसके बावजूद भी उन्हें कड़ी मेहनत करनी है और बराबर आना है, ये उनकी महानता है। और इस पे हमें दृष्टि बनाए रखनी है, कोशिश करनी है कि निरंतर हम कैसे उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें देवी बना दें, हमें सम्मान करना चाहिए, पूजा करना, ये बराबरी नहीं है। अब स्त्री की इसलिए पूजा करो क्योंकि वो स्त्री है, फिर तो पुरुष की भी इसलिए पूजा करो क्योंकि उसके पास दाढ़ी होती है। इसलिए उसका सम्मान, उसकी पूजा नहीं करनी है। सम्मान इसलिए करना है क्योंकि जिस तरह हमारा अस्तित्व है, हम बराबर हैं, उसी तरह वो भी बराबर है। और आखिर में एक पंक्ति पढ़कर विराम लेता हूँ कि हमने पर तो दिया है लेकिन उड़ने नहीं देते, हमारी बेटियां बुलबुल हैं लेकिन पिंजरे में रहती हैं। उत्कर्ष मिश्रा फिट ये लोग If you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate an entire family. Good afternoon, esteemed jury. Myself, Shalu Singh. I'm going to speak on the topic Women and Children Inclusion, a goal of developed India. And inclusive growth includes growth in all the aspects and dimensions. As our Prime Minister always says, Sabka Saath, Sabka Vishwas, Sabka Vikas. But why do we need only a women and children-centric development and growth? Well, because women, they are the foundation, they are the backbone of a family. An educated woman will educate the family. An educated and healthy woman will have a high social status and prestige. An educated woman will be empowered to take her own decisions independently without being under any external pressure. And the children, we all are the future of the country. We are the future scientists, bureaucrats, diplomats, and bottom. We are the economy. We are India. So, to develop children and the women's status in a society means to develop the foundation and the future of the country. Now that I've covered the why aspect, we need to know how to do this. We need to get vocational programs for children so that they can learn new skill sets which are important in this of technology and art.